The education of girls has always demanded higher investment in terms of more facilities, more women teachers, separate schools, transport and scholarships to provide the much needed incentives. While there are numerous instances of minority-run institutions among Christians, Sikhs and Parsis that have made special efforts to provide free education to their girls, among Muslims, this consciousness has been late in coming. But all is not bleak. In Shahpur locality in Ahmedabad, things are changing. In 2012, Gujarat Sarvajanik Welfare Trust established Shama School, a remarkable step towards providing affordable and quality education to Muslim girls. हमारा ट्रस्ट जो है वो 2003 में ऐसे तो 2000 से 2001 से हम लोग का ट्रस्ट एस्टाब्लिश हुआ, लेकिन 2003 से जो है ये रेगुलर काम करना इसने शुरू किया है। अगर वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों की फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं, हमने उनके लिए भी बहुत खुला ओपन मैदान रखा है, और जो माँ बाप नहीं फ़ी भर सकते उनका एक फॉर्म वो लोग सबमिट कर रहे हैं हमारे पास में, और वो उनकी तरफ से हमारा ये गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट जो ये समाज स्कूल की चैनल चला रहा है वो अदा करता है। लेकिन फ़ी की वजह से कोई माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, ये हमारा ट्रस्ट जो है ये गवारा भी नहीं करता और ये होने भी नहीं देता। A part of the school's agenda is to interact with local parents and encouraging them to send their daughters to school. But more importantly, it helps teachers understand the social conditions and environment from which their students belong, so that they develop sensitivity towards them and modify their teaching methodology. There are many students in my school who cannot afford these things. They don't have these facilities like computers at home. They don't have this space at home. They live in small houses with 10 members in a family. So they don't have their own space. But here we give them. Here my students will have their own lockers where they can put their books and their belongings, so that they don't have to carry heavy bags every day to the school. They will have their own computers where they will create their own files and put their stuff into it. They are being taught how to plan and study. Recently, we have also provided infrastructure to the students where they can really grow well, and we are bringing up new projects also. For example, last year, those girls who have graduated with their 10th board with really good marks, 4 students of our school have been joined science stream, and they will be definitely going for medical ahead, and the complete expense is being bared by the trust. A school meant for girls requires special attention to its infrastructure, and Shama takes care of it by providing just that. और इसी के तर्ज पर एक स्कूल हमने और हमारी तामीर इस साल हो चुकी है, शायद आपने उसको देखा भी है। तो वो स्कूल इस साल हमने शुरू कर दिए, हालांकि इन टाइम हमारा वो स्कूल का कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। हालांकि आप हमारी ये तमाम स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो आप इस बात के लिए बिल्कुल मुतमईन होंगे कि हमने ऐसा नहीं है कि एफोर्डेबल रखने के साथ में हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अनएफोर्डेबल बनाया है, कि जिसको बड़ी से बड़ी जो फ़ीस लेकर भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो पर्याप्त नहीं करा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो हमने देने की कोशिश की है। On one hand, Shama School aims to provide quality education in all subjects like maths, science, English, etc.
and on the other, it includes Islamiyat, the teachings of Quran in the curriculum. हम लोग ना जैसे 3 चीज़ें चाहते हैं बच्चे से कि जैसे पढ़ाई अच्छी हो और लड़कियां सेफ़ रहें और फैसिलिटी भी मिले बच्चे को। यहाँ पे हमको सब चीज़ बरोबर लगी, हर चीज़ परफेक्ट दिखी कि पढ़ाई भी सही है, हमारी बच्ची सेफ़ भी है और एजुकेशन भी उसको अच्छा मिल रहा है, साथ में दीन की पढ़ाई और दीन का माहौल भी मिल रहा है। तो इसलिए हमने मतलब डिसाइड किया और हमारे घर फैमिली की माशाल्लाह 6 और 7 लड़कियां हैं इसी स्कूल में और एक साथ में हमने उनको मतलब यहाँ पे एडमिशन लिया है उनका। इंग्लिश भी यहाँ पे अच्छा पढ़ा है उन्होंने एकदम, और मैथ्स में भी अच्छी माशाल्लाह अच्छी दोनों लड़कियाँ पढ़ने में होशियार है, नमाज में भी मैथ्स में भी। कुरान भी अच्छा पढ़ा, यहाँ ही फिनिश कुरान भी यहाँ ही पढ़ा है उन्होंने, और नमाज भी मेरी लड़कियाँ मेरे को सिखाती है कि कुरान नमाज, मेरे को ऐसी नमाज नहीं आती, वो मेरे को सिखाते हैं कि मम्मी ऐसे नमाज पढ़ो। सबसे पहले तो हमारा घर भाड़े का ही है, और दूसरी बात का रिक्शा भी भाड़े से चलाते, रिक्शा ड्राइवर है, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, अभी वो भी छोटा है। और जैसा ये स्कूल के जैसी दूसरी स्कूल नहीं है, और अगर दूसरी स्कूल में अपने करवाए भी वहाँ पर अपनी ताकत नहीं बनती कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, और यहाँ पर फ़ी कम है, कम रखा है, इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ा सकते बच्चे को। अरबी हम पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा मीनिंग के साथ में नहीं आता। अब बच्चा जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मीनिंग के साथ में भी बताते बच्चे को, बच्चे हमको आके इस घर पे बताता कि इसको ये बोलते करके, तो ये सब तो फ़र्क पड़ा बच्चे में। जैसे आप अच्छी स्कूल की बात करें तो इसमें सेंट जेवियर्स का आता है, माउंट कार्मेल आती है, लिटिल फ्लावर आती है। ये सारी स्कूल के अंदर जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और जिस तरह से मेहनत की जाती है उसके ऊपर, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इंक्वायरी किया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर भी उस तरह से मेहनत की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एडेड एडवांटेज ये था मेरे लिए कि लड़कियों की स्कूल थी, और इसके अंदर इंग्लिश के साथ साथ के अंदर अदर लैंग्वेजेस के अंदर अरबी, ये एडेड एडवांटेज है उसका। तो ये सब चीज़ को बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अब ये स्कूल मेरे लिए बहुत सही है बच्चे के लिए, तो मैंने स्कूल के अंदर एडमिशन उसका करवाया, और उसका अभी सीनियर केजी के अंदर है। वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है और अरबिक भी बहुत अच्छा है, और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ ये स्कूल के। A school like Shama is an example of how an initiative can bring a revolutionary change in this grim situation. But is one Shama enough?